We understood the difference between fixed factors and variable factors, and then short run and the long run. We have to understand the production function under two runs. Before that, we must understand the concept of the product. लिख लेना, concept of the product. Concept of the product. Concept of product. Basically, I can say like concept of the utility was marginal utility and the total utility. Utility की concept क्या थी? Marginal utility and total utility. On similar basis, the concept of the product. There are three concepts related to the product. First, it is total product. First is total product. So total product, ठीक है? Denoted by TP. Total product TP. Second is average product. Denoted by AP. And the last is marginal product. Denoted by MP. The three products, total product, average product and marginal product. We will be using the inputs. क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. We will be using inputs and we will be producing goods and services. So उसको हम एक टोटल प्रोडक्ट में देखने वाले, एवरेज प्रोडक्ट में देखने वाले एंड मार्जिनल प्रोडक्ट में देखने वाले. व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? व्हाट इज राइट total product? Total product is total quantity of output produced by combined efforts of all inputs or factors of production, right? Total product is total quantity of output produced by combined efforts of all inputs. That is total output. Simple words में total product मतलब ही total output. Total output. If you apply all your factors, fixed factors, at the same time variable factors, सब factors आपने काम पे लगाए, and you produced the goods and services. So the total quantity of goods and services produced is called as total product. Example, Tata Motors Limited during the month of suppose July produced 1 lakh vehicles. So I will say with combined efforts of all the factors of production, all inputs, labor, raw material, capital, enterprise, land, जितने सारे resources है, जितने सारे inputs है, सबको उन्होंने काम पे लगाया. जितने हैं मतलब जितने उनके पास अवेलेबल है, जो भी प्रोडक्शन में काम करते हैं उनको यूज करके जो आउटपुट बनाया जाएगा उसको टोटल प्रोडक्ट बोला जाएगा. टोटल आउटपुट. द टोटल आउटपुट इज right total quantity produced of a given service, given out goods with combined efforts of all the inputs. Then what do you mean by average product?
average product is total product or total output और प्रोडक्ट, आप जिस जो आपको ठीक लगता है वो बोलो, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। और वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। सो total product is output with combined efforts of all the products, all the inputs। सब inputs काम पे लगाओ, जितना आउटपुट होगा उसको टोटल आउटपुट बोला जाएगा। जो हम आउटपुट कंबाइन कर रहे हैं वो वेरिएबल इनपुट्स एंड फिक्स इनपुट से, दोनों इनपुट से। क्यों वेरिएबल फिक्स? बिकॉज actual output is in the short run. Short run is called as actual production period. So I am talking about the short run, जिसमें दो फैक्टर्स काम कर रहे हैं। एक फिक्स फैक्टर्स जिनको हम चेंज नहीं कर सकते इन द शॉर्ट रन, एंड दूसरा राइट वेरिएबल फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, जिनको इंक्रीज करने से आउटपुट इंक्रीज होगा, जिनको डिक्रीज करने से आउटपुट डिक्रीज होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन पीरियड इज अ शॉर्ट रन, एंड शॉर्ट रन का फीचर होता है फिक्स फैक्टर्स, एटलीस्ट one factor is fixed which cannot be changed, which cannot be varied, वो है शॉर्ट रन। तो हमने फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स लगा के जितना आउटपुट हमने प्रोड्यूस किया है, आउटपुट कैन बी लाइक यूनिट्स, लाइक केजीज, इट कैन बी मीटर्स, किलोमीटर्स। लाइक आप रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दैट इज मेजर्ड नंबर ऑफ किलोमीटर्स, राइट। coal extracted in tons, quintals, sugar like sugar manufacture कर रहे हो, tons में देखा जाएगा। So what I want to tell you, ये crushing कितना क्रश हुआ या कितना क्रशिंग हुआ उसके हिसाब से रहेगा। So output depends आप किस में मेजर करते हो, but what is more important, टोटल कितना प्रोडक्शन हुआ है। So जब मैं टोटल आउटपुट की बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ वेरिएबल एज वेल एज फिक्स इनपुट, सब साथ में आके जो आउटपुट करेंगे उसको हम बोलेंगे टोटल आउटपुट। बट जब मैं एवरेज प्रोडक्ट की बात करता हूं, इट इज टोटल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। बिकॉज कल हमने देखा था फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स में, वेरिएबल फैक्टर्स चेंजेस द आउटपुट इन द शॉर्ट रन। वेरिएबल फैक्टर्स की वजह से आउटपुट चेंज होता है, fixed factors right does not change with the output changes। समझ में आ रहा है? So fixed factor are not related to output, ऐसे बोला तो भी चलेगा। variable factors, by employing more variable factors you can produce more, by employing less variable factors you can produce less। So variable factors will change your output in the short run, variable factors long run में भी, लॉन्ग रन में भी एवरीथिंग इज अ वेरिएबल, वहां पे तो फिक्स्ड है ही नहीं। शॉर्ट रन में तो फिक्स्ड एंड वेरिएबल है, तो कौन आउटपुट चेंज करेगा? वेरिएबल। लॉन्ग रन में तो एवरीथिंग इज अ वेरिएबल, जो शॉर्ट रन में फिक्स्ड होता था वो भी वेरिएबल हो जाएगा इन द लॉन्ग रन। सो विच चेंजेस आउटपुट? वेरिएबल चेंजेस द आउटपुट। एंड अगर मैं टोटल आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट निकालता हूं तो मेरा वो एवरेज प्रोडक्ट रहेगा। मींस एग्जांपल, मैंने एग्जांपल दिया था, टाटा मोटर्स लिमिटेड प्रोड्यूस्ड 1 lakh vehicles in the month of July। So I will say total output or total production of the July month is 1 lakh vehicles। If they had employed 10,000 laborers, they had employed 10,000 laborers to produce that 1 lakh vehicles in the month of July। So I will say 1 lakh vehicles divided by 1 lakh vehicles divided by 10,000 labor। So I will say per labor, right, output per labor is 10। So one labor produced
10 vehicles. So I say 10,000 laborers produce 1 lakh vehicles. So it is total product per unit of the variable input. मतलब total product divided by number of variable inputs. लिख लेना, right? Right? Average product is equal to total product or total output divided by TP divided by number of units of variable input. कोई भी रन होने दो, let it be short run or long run, variable inputs changes the output. Long run में everything is a variable, short run में भी variably input increase or decrease करेंगे. So अगर मैं total output divided by number of variable units करता हूँ inputs, तो मुझे मिलेगा average product per labor. Then what do you mean by, राइट? अगर ये आपका फॉर्मूला है एवरेज प्रोडक्ट का, एवरेज मार्क्स कैसे निकालते हो? आपके टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट. ऑन सिमिलर बेसिस अगर हमें एवरेज प्रोडक्ट ढूंढना है तो टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स. अगर इसी से इफ यू यूज, I can find out total product like this. TP is equal to AP average product multiplied by number of units of variable input. इनपुट से आउटपुट बनता है, इनपुट से आउटपुट बनता है, ठीक है? वेरिएबल इनपुट, इनपुट से आउटपुट बनता है, ठीक है? आगे सो एवरेज प्रोडक्ट, इसी फॉर्मूला को मैंने ट्विस्ट कर दिया. ये जो एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है उसको ही मैंने किया टीपी इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स, ठीक है? आगे नेक्स्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट इज, मार्जिनल मींस एडिशनल, वन एक्स्ट्रा. मैंने आपको पहले टोटल एंड मार्जिनल की कंसेप्ट समझाई. मार्जिनल इज वन एक्स्ट्रा. हमने मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी समझी थी. मार्जिनल यूटिलिटी इज एडिशनल यूटिलिटी because of consumption of 1 unit extra. Change in the total utility because of 1 additional unit is marginal utility. What is a marginal product? Same. Change in the total is a marginal. So change in the total output, total product, because of 1 additional unit of the variable input. लिख लेना, change in total product or total output because of one additional unit of variable input. If you employ, आपको आउटपुट करना है, राइट? यू वांट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज. उसके लिए आप क्या करते हो? उसके लिए आप इनपुट्स एम्प्लॉय करते हो, लेबर लगाते हो. सपोज लेबर लगा रहे हो आपने. सो इफ यू ऐड 1 लेबर एक्स्ट्रा, एक और बंदा काम पे लगाते हो, वो लगाने के बावजूद, मतलब वो लगाने के वास्ते टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज होता है? वो लगाने के बाद टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज होता है? उसके आने से, एक्स्ट्रा लेबर आने से टोटल प्रोडक्ट कितने से चेंज हो रहा है? दैट इज मार्जिनल प्रोडक्ट. सो आई कैन ऑलवेज से marginal product is addition in total product. 1 additional unit of variable input. 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 1
addition in total product because of addition of one unit in variable input. In variable input. ठीक है, addition in the total product or change in the total product because of change in variable input. So I can also write the formula MP, marginal product, is equal to change in total product divided by change in number of units of variable input. लिख लेना, change in number of units of variable input. Input. Or there can be another formula. Or what can be another formula? Another formula can be, right, marginal product of nth labor. N is the number of input. N is number of input is equal to total product of n labors minus total product of previous labor, n minus 1. N is, right, unit of variable input. In case of marginal utility, n was number of units consumed, because हम consumption से utility मिलती है. प्रोडक्शन क्यों मिलता है? बिकॉज ऑफ इनपुट्स. आप इनपुट्स काम पे लगाते हो, इनपुट्स एम्प्लॉय करते हो, इसलिए आउटपुट बनता है. सो इनपुट चेंज होंगे तो आउटपुट चेंज होगा, इनपुट चेंज होंगे तो आउटपुट चेंज होगा. इनपुट्स प्रोड्यूसेस आउटपुट. इसलिए हम यहाँ पे माई एन इज अ इनपुट. फॉर्मूला वही है, कंसेप्ट वही है. मार्जिनल कुछ अलग नहीं. मार्जिनल मतलब वन एक्स्ट्रा. मार्जिनल अभी क्लियर हुआ ना? अभी मतलब फाउंडेशन में, इंटर में 40 मार्क्स की मार्जिनल कॉस्टिंग है. मार्जिनल कॉस्टिंग 40 मार्क्स, उसमें आपको हर चीज आएगी. जो मैं बोल रहा हूं ना, वो हर चीज आपको याद आएगी तब. सो मार्जिनल मींस वन एक्स्ट्रा. जब मैं मार्जिनल प्रोडक्ट ढूंढता हूं तो आपको क्लिक होना चाहिए, मैं प्रोडक्ट ढूंढ रहा हूं मतलब प्रोडक्शन ढूंढ रहा हूं, मतलब चेंज इन द टोटल आउटपुट, चेंज इन द टोटल प्रोडक्शन. बिकॉज ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इनपुट्स. MU, मार्जिन यूटिलिटी, चेंज इन द टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ यूटिलिटी. क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ यूनिट्स कंज्यूम. तो वहां पे चेंज इन द यूनिट्स कंज्यूम. ठीक है, आगे. सो यहां से मुझे एक और फॉर्मूला मिल सकता है टीपी का. और टीपी इज इक्वल टू टीपी ऑफ एन लेबर्स, एन वेरिएबल इनपुट्स. जब हम एन लेबर्स, एन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स काम पे लगाएंगे, एन नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स काम पे लगाएंगे, तो कितना आउटपुट होगा? सो फर्स्ट मैं लेबर बोल रहा हूं बिकॉज लेबर जनरली वी कीप इट एज अ वेरिएबल. मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ सेकंड वेरिएबल इनपुट प्लस मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ थर्ड वेरिएबल इनपुट अप टू मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स ऑफ इनपुट. हर इनपुट का हम क्या करेंगे? हर इनपुट का हम आउटपुट ढूंढेंगे. तूने कितना प्रोड्यूस किया बोल, तूने कितना प्रोड्यूस किया बोल, तूने कितना प्रोड्यूस किया बोल, और हम उसकी समेशन लेंगे, हमें टोटल मिलेगा. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ यू रिमेंबर, टोटल प्रोडक्शन ऑफ n नंबर ऑफ वेरिएबल इनपुट्स इज समेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट्स. यूटिलिटी में मैं u लिखता था, tu of n units is equal to summation of mu of n units. सेम है, कुछ अलग नहीं है, एग्जैक्टली सेम. ठीक है,
इसके बाद जस्ट ये पॉइंट मैं समझाऊंगा, ये लिख लेना। अभी हम एक के नीचे एक लिख रहे हैं, इसलिए मैं यहां पे कंप्लीट करता हूं। When number of units of variable inputs are increased, तीनों में सेम पॉइंट, ठीक है। देखते हैं, अगर हम वेरिएबल इनपुट्स इंक्रीज करेंगे तो क्या क्या होगा। अगर हम वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करेंगे, हाउ टीपी विल बिहेव, हाउ एपी विल बिहेव, हाउ एमपी विल बिहेव। इनिशियली टीपी increases at increasing rate, then TP increases at decreasing rate। ये हमें, यही हमें सीखना है, मैं अभी लिख के दे रहा हूं। राइट, then TP reaches its highest point and then TP decreases। बेल शिफ्ट, बेल शिफ्ट, बेल शिफ्ट, ठीक है। निकाल के रखो, जब हम लॉक करेंगे तो अपने आप आपको हर चीज क्लिक हो जाएगी, ठीक है। हमें आउटपुट करना है, तो आउटपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करते हैं, बराबर, वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करते हैं। अगर हम वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करेंगे तो टीपी पहले इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से, फिर इंक्रीज होगा डिमिनिशिंग रेट से, मैक्सिमम होगा और डिक्रीज होगा, बेल शिफ्ट। हाउ योर एपी विल चेंज, एवरेज प्रोडक्ट कैसे चेंज करेगा, यहां पे लिखता हूं। राइट, इनिशियली AP increases, then becomes maximum or reaches highest point, becomes maximum, and then falls। सेम अगेन बेल शिफ्ट, अगेन बेल शिफ्ट, अगेन बेल शिफ्ट, ठीक है। दोनों सेम ही, ऑलमोस्ट कर सेम ही है, शेप सेम है, बेल शिफ्ट है। एमपी, अगर हम प्रोडक्शन करने के लिए वेरिएबल इनपुट्स इंक्रीज करने वाले हैं, अगर हम वेरिएबल इनपुट्स इंक्रीज करेंगे, हाउ माय एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट विल बिहेव। लिखो, इनिशियली MP increases, then MP decreases, then
MP becomes is equal to 0, then negative. अब आप MP and TP कंपेयर करो. If you remember the relation between marginal and total, if marginal खुद इंक्रीज हो रहा है, marginal decides the total, बराबर, marginal decides the total, marginal खुद इंक्रीज हो रहा है, खुद ऊपर जा रहा है, तो टोटल को भी ऊपर खींचेगा एट ए इंक्रीजिंग रेट. इसलिए फर्स्ट देखो यहाँ पे मार्जिनल इंक्रीजेस, टोटल इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट. दूसरा, जब मार्जिनल डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव होता है, डिक्रीज होता है बट पॉजिटिव, तो टोटल इंक्रीज होती है बट धीरे धीरे. मैंने कल एग्जांपल दिया था, ग्रुप पे किसी ने पढ़ा, आई डोंट नो, कोरोना कर्व फ्लैट होनी चाहिए. मतलब हम बोलते डेली बेसिस पे जो पेशेंट्स बाहर आ रहे वो कम होने चाहिए. अगर डेली पेशेंट पे जब बेसिस पे पेशेंट्स कम होंगे, सो मार्जिनल मतलब एडिशनल पेशेंट जब कम होंगे ऑन डेली बेसिस, मतलब जब मार्जिनल पेशेंट्स, एडिशनल पेशेंट्स ऑन डेली बेसिस मींस मार्जिनल पेशेंट जब कम होंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, तो टोटल इंक्रीज होगा बट डिमिनिश रेट, वो फ्लैट 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 होते जाएगी. एंड एक दिन ऐसे आएगा कि मार्जिनल एडिशन 0 हो जाएगा, एडिशन 0 हो जाएगा, मार्जिनल 0 होगा, तो टोटल कांस्टेंट हो जाती है, मैक्सिमम एंड कांस्टेंट हो जाती है. हमें वहां पे आना है, हमें एडिशनल पेशेंट ऑन डेली बेसिस 0 करने. तो एडिशनल पेशेंट ऑन डेली बेसिस 0 हो जाएंगे तो कर्व फ्लैट हो जाएगी, फ्लैट. समझ में आ रहा है? कब कर्व फ्लैट होगी? जब मार्जिनल पेशेंट डेली बेसिस पे जो नए पेशेंट आ रहे हैं ना, जब वो जिस दिन 0 होंगे उस दिन एडिशन 0 हो गई, तो जितना पहले उतने कांस्टेंट रहेंगे एंड फिर हम उनको रिकवर करते रहेंगे, तो टोटल नंबर विल डिक्रीज. ऑब्वियसली मार्जिनल पेशेंट निगेटिव नहीं होंगे, पेशेंट कैन नॉट बी निगेटिव, तो वो 0 ही रहेगा. पेशेंट कैन नॉट बी निगेटिव, ये पर्सन कैन नॉट बी निगेटिव. समझ में आ रहा है? फिर रिकवरी रेट हम इंप्रूव करेंगे, रिकवर होगा हमारा. सो ध्यान देना, जब खुद मार्जिनल लाइक टुडे इन पुणे डेली बेसिस पे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स बाहर आ रहे हैं, डेली बेसिस पे ज्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स मिल रहे हैं, कल से आज ज्यादा है, आज से कल ज्यादा रहेगा, फिर परसों ज्यादा रहेगा. अगर एवरी डे नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग, तो टोटल विल इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, कर्व इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होगी. बट जब धीरे धीरे कंट्रोल आना स्टार्ट होगा, जब डेली बेसिस पे पेशेंट्स का नंबर कम होता जाएगा, मतलब कंट्रोल मिल रहा है, कर्व धीरे 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 फ्लैट होती जाएगी, इंक्रीज होगी बट डिमिनिशिंग रेट पे. पहले एकदम ऐसे स्टीप होगी, एकदम ऊपर जाएगी लाइक दिस, टोटल एकदम स्टीप है, मतलब डेली बेसिस पे नंबर ऑफ पेशेंट्स आर इंक्रीजिंग. और जब वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो कर्व थोड़ी ऐसे फ्लैट 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 होती जाएगी. एंड एक दिन आएगा जब कर्व पूरी फ्लैट हो जाएगी. ये पीरियड में मार्जिनल इज 0, इस पीरियड में मार्जिनल 0, यहाँ पे मार्जिनल पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, खुद इंक्रीज हो रहा है, तो टोटल को भी एकदम स्पीड में ऊपर लेके जाएगा. इस फेज में, इस फेज में, ये वाली फेज, यहाँ पे मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है बट पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है, एडिशन पॉजिटिव है, इसलिए टोटल इंक्रीज हो रहा है बट धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज डेली बेसिस पे कम पेशेंट्स आएंगे. आज सपोज 10 दिन पहले 100,000 पेशेंट थे, सपोज आज 1000 पेशेंट है, कल 900, फिर परसों 800, फिर 700, फिर 600. मार्जिनल जब कम होते जाएगा, पॉजिटिव है बट कम होते जा रहा है, टोटल इंक्रीज होगी बट धीरे धीरे इंक्रीज होगी, कर्व फ्लैट होना स्टार्ट होगी. एंड जिस दिन पेशेंट्स इंक्रीज इन पेशेंट 0 हो जाएगा, आज 0, कल 0, परसों 0, 0, 0, 0, कर्व पूरी कांस्टेंट हो जाएगी. एंड फिर रिकवर 14-15 दिन में जो भी पेशेंट थे वो रिकवर होना स्टार्ट होंगे एंड फिर टोटल डिक्रीज होती जाएगी. टोटल इसलिए डिक्रीज नहीं हो रही है कि मार्जिनल निगेटिव हो रहा है, पेशेंट्स कैन नॉट बी निगेटिव बट रिकवर होते जाएंगे, इसलिए टोटल डिक्रीज होता रहेगा. तो गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट दिस. You can learn, you can always apply marginal total relationship in each and every aspect of your life. जिनको ये समझ में आता है मार्जिनल टोटल का रिलेशन, वो राइट हर चीज में अप्लाई कर सकते हैं.
सो गवर्नमेंट बोल रही है हमें कर्व फ्लैट करनी है. व्हाट दे मीन कर्व फ्लैट करनी है? दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट, राइट, दे आर टॉकिंग अबाउट कि हमें पेशेंट का नंबर एक तो डिक्रीज करना है या उसको नील करना है एडिशनल पेशेंट का. ठीक है. सो आगे. सो अब ध्यान देना मैंने क्या बोला. फर्स्ट मैंने यहां पे बोला कि मार्जिनल मार्जिनल पॉजिटिव है और इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट. इसलिए अगर खुद मार्जिनल इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट से. ठीक है. सेकंड इसमें मैंने लिखा मार्जिनल डिक्रीज होगा, बट वो जीरो बाद में हो रहा है, मतलब पॉजिटिव है. सो मार्जिनल डिक्रीज होगा तो टोटल इंक्रीज होगी, बट धीरे धीरे फ्लैट होती जाएगी डिक्रीजिंग रेट से. जब मार्जिनल खुद जीरो होगा, एडिशन जीरो होगा, टोटल टीपी रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट एंड कांस्टेंट, एंड वहां पे वो कांस्टेंट हो जाएगी. वहां पे वो कांस्टेंट होगी. ठीक है. देन लास्ट, जब वो खुद मार्जिनल डिक्रीज होगा, खुद एडिशन निगेटिव है, अगर आपके कोई क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग आता है एमसीक्यूज में, तो टोटल डिक्रीज होगी, बिकॉज दैट विल गिव यू नेगेटिव मार्किंग. उसकी एडिशन निगेटिव है तो टोटल भी डिक्रीज होगी. सो वही रिलेशन यहां पे भी है. ठीक है. आगे, इसलिए मैंने बोला जो मार्जिन टोटल का रिलेशन है वो यूनिवर्सल रिलेशन है. सो इफ यू आर टू ड्रॉ द कर्व, ड्रॉ लाइक दिस. यहाँ पे वो जीरो होगा. ठीक है. ठीक है. यहाँ पे टीपी है, टोटल प्रोडक्ट. यहाँ पे लेबर, वेरिएबल ना, वेरिएबल इज लेबर, वी एज्यूम लेबर कैन बी चेंज्ड. यहाँ पे एपी है, लेबर. मतलब देखो, जैसे नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज होगा, जैसे से लेबर इंक्रीज होगा, यू आर एम्प्लॉइंग मोर पर्सन. एक बंदा, दो बंदा, 3, 4, 5, 6, 10,000, 20,000, 30,000, वैसे वैसे टोटल इंक्रीज हो रही है, मैक्सिमम होके डिक्रीज होगी. यहाँ पे भी वैसे, यहाँ पे भी वैसे. दिस इज एनपी, दिस इज लेबर. तीनों कर्व में एक सिमिलरिटी है. व्हाट? ऑल आर बेल शेप्ड, इन्वर्टेड यू शेप इसको बोला जाता है. यू शेप है बट इन्वर्टेड. बेल शेप्ड कर्व्स और इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व्स. बेल शेप्ड कर्व और इन्वर्टेड यू शेप्ड कर्व. ठीक है. अच्छा, क्लियर है यहां तक? तो ये जो लास्ट पॉइंट है, मे बी बच्चों को नहीं समझ में आएगा, बट मैंने अभी तक गायने में खाली वो लिख के दिया हूं. सो दिस इज द राइट कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट. ठीक है. आई विल टेक एन एग्जांपल, एंड उसी एग्जांपल के साथ हम लॉ भी स्टडी करेंगे. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. एग्जांपल. ठीक है. लिखो प्रोडक्ट शेड्यूल. ठीक है. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल इनपुट हम वो मानते हैं दैट इज लेबर. We assume that we can easily change the number of persons employed. ठीक है. Labor is treated as variable input always. ठीक है. Variable input और variable factor of production. Variable input बोलो, variable factor of production बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता. 0, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. मैं थोड़ा सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं. मैंने पहले बैच में वो एग्जांपल लिया था, वही मैं एग्जांपल ले रहा हूं. राइट. नो वन रिमेंबर्स दिस शेड्यूल. ठीक है. खाली आपको शेड्यूल दिया होगा तो आपको वैल्यू ढूंढना आना चाहिए. तो जब हम लेबर काम पे लगाएंगे तो आउटपुट बनेगा. यस. तो यहाँ पे आएगा टोटल प्रोडक्ट. टोटल प्रोडक्ट.
also called as TP. ठीक है, टोटल प्रोडक्ट also called as TP. When there is no labor, कोई काम पे नहीं है, तो टोटल प्रोडक्ट क्या रहेगा? ऑब्वियसली जीरो, जीरो रहेगा. आपने एक बंदा काम पे लगाया, पहले एक भी काम पे नहीं था, टोटल प्रोडक्ट जीरो. मैंने जानबूझ के जीरो लाइन रखी है, ठीक है. मैंने एक बंदा काम पे लगाया, राइट. वो आने के बाद मैं टोटल आउटपुट इंक्रीज टू 10. एक बंदा मैंने काम पे लगाया, मैंने बोला तू काम कर, स्टार्ट कर दे, और उसने, वो आने के बाद मैं टोटल आउटपुट इज 10. देखते हैं. मैंने एक और बंदा काम पे लगाया, पहला तो है, उसके साथ एक लगाया, दोनों ने मिला के ओवरऑल 30 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. ठीक है. मैंने एक और बंदा काम पे लगाया, अब 3 लोग काम पे, तीनों ने मिला के 60 आउटपुट किया. 60, तीनों ने मिला के 60. मैं एक और बंदा काम पे लगाता हूं, इन्होंने सब में मिला के, चारों ने मिला के 80 आउटपुट किया. मैंने एक और बंदा काम पे लगाया, ये 5 मिला के उन्होंने 90 आउटपुट किया. एक आप चीज देख सकते हो, एज आई एम इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेबर्स, जैसे जैसे मैं वर्कर्स इंक्रीज करते जा रहा हूं, मैं टोटल आउटपुट इंक्रीज होते जा रहा है. आई डू एग्री. मैं जैसे जैसे बंदे काम पे लगाऊंगा, दे विल प्रोड्यूस फॉर मी, माय टोटल आउटपुट विल इंक्रीज. इट इज गुड थिंग. दिख रहा है कि आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मैंने 6 बंदे को काम पे लगाया, हाउएवर माय आउटपुट रिमेन 90 ओनली. टू माय सरप्राइज, 6 बंदा आने से माय आउटपुट हैज नॉट चेंज्ड, उतना ही है जितना 5 बंदे काम करने से कर रहे थे. देन मैंने फिर भी 7th बंदे को काम पे लगाया, एंड नाउ माय आउटपुट रिड्यूस टू 85. माय आउटपुट रिड्यूस टू 85. देखो, आउटपुट इंक्रीज 0 से ऑलमोस्ट 80 हुआ, 90 हुआ. टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, देन 90 पे कांस्टेंट रहा, एंड देन 85 डिक्रीज हुआ. सो टोटल प्रोडक्ट इज initially increases as you increase number of labor, as you increase number of units of variable input. Variable input मतलब आगे से labor, मैं कभी labor बोलूंगा, कभी variable input बोलूंगा, it is one and the same. हाँ. So when I increase the number of labors or variable inputs, my initially total production increase 10 हुआ, 30, 60, 80, 90. Later on it remain constant, 90 का 90. एंड अगर मैं फिर भी लेबर काम पे लगा रहा हूं, एडिशनल बंदे काम पे लगा रहा हूं, मैं आउटपुट डिक्रीज टू 85. ऐसे क्यों, ये हमें समझना है. दैट इज द लॉ. आगे, नाउ कैन यू फाइंड आउट एवरेज प्रोडक्ट? चलो एवरेज प्रोडक्ट ढूंढते हैं. दैट इज एपी. यू कैन नॉट फाइंड आउट 0 by 0, वो इग्नोर किया तो भी चलेगा. ठीक है. अब मुझे बोलो, when there was one labor, एक बंदा काम कर रहा था, total output was 10. तो can I say 10 upon 1? On an average, my output was 10 when one person was working. बराबर? When 2 workers were working, two workers produced 30 output. So can I say, on an average they have contributed 15. On an average their production is 15. ठीक है. दोनों ने एवरेज 15 multiplied by 2 comes 30. The 3 workers produced 60 units. 60 divided by 3, average is 20. Average is 20. So I will say average output of the 3 workers is 20 पर वर्कर ना, ये 20 पर वर्कर है. 3 लोगों ने काम किया, 20 मल्टीप्लाई बाय 30, आप बोलोगे 60 इज द टोटल आउटपुट. 4 लोगों ने मिला के 80 आउटपुट किया. सो एवरेज रिमेन 20 ओनली. देन 5 लोगों ने मिला के 90 प्रोड्यूस किया. एटीन आई थिंक, 18 हुआ. यस 18. बराबर. देन आगे 6 लोगों ने मिला के 90 प्रोड्यूस किया. 90 डिवाइडेड बाय 6,
15 ऑन एन एवरेज इज 15. एवरेज डिक्रीज हुआ है, देखो पहले 10 था, फिर 15, फिर 20, वो कांस्टेंट रहा 20, फिर डिक्रीज हुआ 18, फिर डिक्रीज हुआ 15. एवरेज कम हो रहा है, ठीक है. देन 85, 7 लोगों ने मिला के 85 प्रोड्यूस किया. सो 85 डिवाइडेड बाय 7, कुछ तो 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है. 12 पॉइंट समथिंग कि कितना लोग हैं, 1 4, 12 पॉइंट समथिंग. सो ऑन एन एवरेज 7 workers have produced 12.14. Multiply by 7 करके तो you will get 85. So what you see about the average product? Initially average product increased, then it became constant, maximum and constant, and then it decreased. दिख रहा है? So वही तो है. Average product as labor increases, जैसे जैसे आपने workers काम पे लगाए, जैसे जैसे workers आपने काम पे लगाए, your average product increase हो रहा है. Your average product increase हुआ. It became maximum and constant, and then it decreased. सिंपल है, ठीक है. एवरेज कम होगा. देन मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपी, मार्जिनल प्रोडक्ट. इनिशियली जाने दो, ठीक है. ओके, मार्जिनल प्रोडक्ट 0 है. ठीक है, देखते हैं. मार्जिनल प्रोडक्ट इनिशियली 0 का 0 रहेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. 0 लेबर्स प्रोड्यूस 0 आउटपुट. व्हेन यू एम्प्लॉयड फर्स्ट लेबर, वो आने के बाद माय टोटल आउटपुट इंक्रीज टू 10. 0 से 10 हो गया. So change in the total output is 10. Change in the total output is 10 divided by change in the input number of labor is 1. Marginal product is 10. Marginal product is 10. Clear है? आगे. When मतलब फर्स्ट लेबर ने 10 प्रोड्यूस किया, इसका मतलब फर्स्ट लेबर की इफिशियंसी 10 यूनिट्स किया. ही प्रोड्यूस 10. आपने एक और काम पे लगाया, एक और आने से आपका आउटपुट 10 का 30 हो गया. चेंज इन द आउटपुट इज 20. 10 का 30 हो गया, सो इट इंक्रीज बाय 20. चेंज इन द आउटपुट डिवाइडेड बाय चेंज इन द इनपुट, 1 बिकेम 2. एक लेबर एक्स्ट्रा ने, सेकंड लेबर आने से टोटल आउटपुट 30 हो गया. 10 से 30 हो गया, इंक्रीज बाय 20. सो मैं बोलूंगा सेकंड लेबर ने 20 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किए, फर्स्ट लेबर ने 10 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किए, सेकंड लेबर ने 20 यूनिट्स कंट्रीब्यूट किए, दोनों ने मिला के 30 कंट्रीब्यूट किया. ऑन एन एवरेज 15. दो लेबर ने ऑन एन एवरेज 15 प्रोड्यूस किया. तो जब मैं ऑन एन एवरेज बोलता हूं तो किसी ने ज्यादा किया होगा, किसी ने कम किया होगा. ऑन एन एवरेज 15 है, तो इन फर्स्ट लेबर ने 10 प्रोड्यूस किया है, सेकंड ने 20 प्रोड्यूस किया है, ऑन एन एवरेज 15. So can't I say the second labor is more efficient than the first one? Second labor is more efficient than the first one. Reason can be anything. ऐसे actually I should not say more efficient वगैरह, but दिख के तो ऐसे लग रहा है कि सेकंड वाले ने पहले से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस किए. फर्स्ट वाले ने 10 किए थे, सेकंड वाले ने 20, ऐसे दोनों के मिला के 30 हो गए. अब देखते हैं, हमें लग रहा है कि यार सेकंड ने तो ज्यादा प्रोड्यूस किया, तो थर्ड को भी लगाएंगे तो और प्रोड्यूस होगा. देखो, बाय एम्प्लॉइंग थर्ड लेबर, एक और लेबर लाने से, एम्प्लॉयमेंट देने से, योर आउटपुट 30 से 60 हो गया. टोटल आउटपुट इंक्रीज बाय 30. 30 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 1, चेंज इज 1. 2 से थर्ड लेबर आने से, so marginal productivity of
थर्ड प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और द इफिशियंसी. Marginal productivity means efficiency of the third labor is 30 units. थर्ड बंदा 30 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. पहले वाले ने 10 किए, दूसरे वाले ने 20 किए, तीसरे वाले ने 30 किए, टोटल 60 हो गए. टोटल 60. आप बोलते हो 60 आउटपुट्स बाय 3 लेबर्स ऑन एन एवरेज 20. और 3 लोगों ने ऑन एन एवरेज 20 किए, तो किसी ने 20 से कम किया होगा, किसी ने 20 से ज्यादा किया होगा, किसी ने 20 किया होगा. ऑन एन एवरेज 20 है. तो देखो फर्स्ट ने 20 से कम किया है 10, सेकंड ने 20 किया है एंड थर्ड वाले ने 20 से ज्यादा किया है. एवरेज मतलब इफिशियंसी नहीं. अगर आपको 80% आए हैं डज नॉट मीन एवरी पेपर में आपको 80% आए. कोई पेपर एवरेज से बिलो हो सकते हैं, कोई पेपर्स एवरेज पे हो सकते हैं, कोई पेपर्स एवरेज से ज्यादा हो सकते हैं. जो एवरेज से कम है उन्होंने आपको नीचे लाया, आपका एवरेज कम लाया. जो एवरेज के ऊपर है वो आपका एवरेज ऊपर खींच रहे थे. ऐसे समझ में आ रहा है. तो ए बी एंड सी आप देख सकते हो एवरेज ज्यादा हो रहा है. 10 था पर 15 है फिर 20 है, बिकॉज एडिशनल लेबर की इफिशियंसी पहले से ज्यादा है, सेकंड की इफिशियंसी फर्स्ट से ज्यादा है, थर्ड की इफिशियंसी सेकंड से ज्यादा है. सो एवरी लेबर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन व्हाट द प्रीवियस लेबर डिड. सो अगर आप इसको पेपर में बोलते हो, फर्स्ट पेपर से सेकंड पेपर में ज्यादा मार्क्स आए, सेकंड पेपर से थर्ड पेपर में ज्यादा मार्क्स आए, तो एवरी पेपर इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन द प्रीवियस, योर एवरेज विल इंक्रीज. इसलिए एपी इंक्रीज हो रहा है 10, 15, 20 एज लॉन्ग एज एमपी इंक्रीजेस. क्या बोल रहा हूं ध्यान देना. एज लॉन्ग एज एमपी इंक्रीज मतलब एडिशनल इंक्रीज होगा, योर एवरेज विल ऑल्सो इंक्रीज. एज लॉन्ग एज एमपी इंक्रीज होगा आपका एपी भी इंक्रीज होगा, बिकॉज आपका एवरेज इंक्रीज होगा ना. आर यू गेटिंग. सपोज एग्जांपल धवन ने 20 रन किए, धवन ने 20 रन किए, शर्मा ने 40 रन किए, कोहली ने 60 रन किए, तो एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग मोर टू द स्कोर. सो इसने 20, इसने 40, 60 रन हो गए, कोहली ने 60 किए, टोटल 120 रन हो गए. 120 रन हो गए, डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपको दिखेगा 120 डिवाइड बाय 3 40. देखो धवन ने 20 रन बनाए, एवरेज 20 है. धवन एंड आपका रोहित ने 40 बनाए, दोनों ने मिला के 60. इसके 20, इसके 40, 60, तो एवरेज 30 है. कोहली आ गया, उसने खुद 60 बनाए, तो 60 में उसके 60 ऐड करो, 120, 40. बिकॉज धवन जैसे जैसे प्लेयर खेल रहे, धवन से ज्यादा रोहित ने बनाए, रोहित से ज्यादा विराट ने बनाए, तो आपका एवरेज भी इंक्रीज होगा, बिकॉज एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग मोर देन द बिफोर. सो इसलिए बोला जाता है जब तक मार्जिनल इंक्रीज होगा, मैं बाद में एक रिलेशन लिख के दूंगा और इन डिटेल रिलेशन, जब तक मार्जिनल खुद इंक्रीज होगा वो टोटल को तो खींचेगा ही खींचेगा, ऊपर स्पीड में खींचेगा, टोटल को ऊपर खींचेगा और स्पीड में खींचेगा, एकदम स्टीपर रहेगा, इंक्रीजिंग रेट से ऊपर खींचेगा, एवरेज को भी ऊपर खींचेगा, एवरेज को भी ऊपर खींचेगा. ठीक है आगे. देन हमने एक और बंदे को काम पे लगाया, वी आर हैप्पी टिल द थर्ड लेबर कि यार पहले ने तो 10 आउटपुट दिया था, सेकंड ने 20, थर्ड ने 30, चलो एक और लगाते हैं क्या हुआ देखते हैं. जैसे आपने फोर्थ लेबर काम पे लगाया, आपका आउटपुट 60 से 80 हो गया, इंक्रीज हो गया, मतलब फोर्थ लेबर प्रोड्यूस कर रहा है, बट उसने कितना प्रोड्यूस किया वो ढूंढना है. जब 3 लोग काम कर रहे थे आउटपुट 60 था, जब फोर्थ बंदा आ गया टोटल आउटपुट 80 हो गया. सो 80 माइनस 60, बिकॉज ऑफ फोर्थ लेबर output, total output changed by 20 divided by 1. 1 by 4 minus 3 is 1. 20. इसके पहले आपका एवरेज 20 था, इसके पहले आपका एवरेज 20 था, बराबर. फोर्थ बंदा आने के पहले एवरेज 20 था. जैसे फोर्थ बंदा आ गया, अगर वो मिनिमम एवरेज भी मेंटेन करते हैं ना, वो उतना प्रोड्यूस करेगा जितना एवरेज है. बाकी लोग हम वो फोर्थ आ गए, हमने बोला देख हमारा सबका एवरेज 20 है, अभी तक हम 20 प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन एन एवरेज तीनों. अगर वो 20 मिनिमम 20 देगा ना तो आपका एवरेज मेंटेन होगा. अगर 20 से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, एवरेज से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो एवरेज ओवरऑल ऑब्वियसली इंक्रीज होगा. ऐसे पकड़ो कि 3 पेपर का एवरेज 20 है और फोर्थ पेपर भी 20 देता है आपको मार्क्स, तो आपका एवरेज मेंटेन रहेगा 20.
अगर फोर्थ पेपर 20 से ज्यादा देगा तो एवरेज ऊपर जाएगा, 20 से ऊपर जाएगा। जो आपको जल्दी समझते हैं ना वो समझो और फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करो। इस बंदे ने, फोर्थ बंदे ने 20 आउटपुट दिया, एग्जैक्टली उतना जितना उनका एवरेज था, इसलिए द एवरेज रिमेन सेम। बट थर्ड लेबर से फोर्थ लेबर थोड़ा इनएफिशिएंट है। थर्ड लेबर 30 प्रोड्यूस कर रहा था, फोर्थ खाली 20 प्रोड्यूस कर रहा है। सो फोर्थ इज लेस इफिशिएंट देन द थर्ड। बट यस, वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, वो आने से फायदा तो हो रहा है। क्यों? बिकॉज वो प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अच्छा। फिफ्थ, आप बोलते हो चलो एक और एडिशनल लेबर लगा के देखते, पांचवें बंदे को बुलाया, बोला तू काम पे लग जा, राइट। यू फाइंड दैट जब 4 लोग काम कर रहे थे 80 आउटपुट था, जब 4 लोग काम कर रहे थे 80 आउटपुट था, जब पांचवें बंदे को काम पे लगाया आउटपुट 90 हो गया, इंक्रीज हुआ 10। जब 4 से फिफ्थ लेबर आया तो आउटपुट चेंज बाय 10 डिवाइडेड बाय 1 एडिशनल लेबर, मतलब फिफ्थ लेबर 10 कंट्रीब्यूट कर रहा है। नाउ ही इज बिलो द एवरेज। पांच लोग मिला के 20 प्रोड्यूस कर रहे थे ऑन एन एवरेज, इसने उनसे कम प्रोड्यूस किया, मतलब आपके 5 पेपर मिला के 20 ऑन एन एवरेज था, 4 पेपर मिला के 20 एवरेज था, और फिफ्थ पेपर ने 20 से कम लाया, तो आपका ऑब्वियसली एवरेज नीचे आ जाएगा। वैसे हो गया, एवरेज डिक्रीज हो गया। वही मैं आपको समझा रहा हूं कि एज लॉन्ग एज मार्जिनल इंक्रीज होगा एवरेज भी इंक्रीज होगा। बट जब मार्जिनल खुद डिक्रीज होगा तो योर एवरेज विल डिक्रीज, एवरेज डिक्रीज होगा। आगे ये रिलेशनशिप हमें स्टैब्लिश करनी है। आगे नेक्स्ट, सो देखते हैं आगे। हमने बोला यार फिफ्थ तो इनएफिशिएंट है, 4 से भी इफिशिएंट है फोर्थ लेबर से। बोलते ठीक है चलो एक और एडिशनली लेबर लगा के देखते हैं। हम बोल रहे आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, 80 से 90 हो गया, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा है, सेल करके पैसे कमाएंगे और प्रोड्यूस करेंगे। अपने 6th बंदे को काम पे लगाया, एक और बोला आपने एक और तू आ जा, योर आउटपुट रिमेन सेम। टू योर सरप्राइज 6th बंदा लगाने के बाद भी आउटपुट सेम रहा, आउटपुट डिड नॉट चेंज, कांस्टेंट है आउटपुट, चेंज इन द आउटपुट इज 0, चेंज इन द इनपुट इज 1, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0। 6 लेबर ने 0 प्रोड्यूस किया है। 6 लेबर नहीं है तो भी आउटपुट 90 था, 6 लेबर आने के बाद भी आउटपुट 90 है। 6 लेबर की जरूरत ही नहीं है, 6 लेबर की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज उसकी इफिशियंसी 0 है। बट उसकी इफिशियंसी 0 है, राइट। इसके पहले आपका एवरेज कितना था? 18 था ना, 5 लोगों का एवरेज 18 था। 6th बंदे ने 18 से कम प्रोड्यूस किया तो आपका एवरेज डिक्रीज होगा, देखो डिक्रीज हो गया, 15 से 15 पे आके रुक गया। समझ में आ रहा है? एडिशनल पेपर गिव्स यू लेस मार्क देन द एवरेज, तो योर टोटल एवरेज विल रिड्यूस ऑन सिमिलर लाइन। बट ये लेबर की जरूरत ही नहीं थी। क्यों? 5 लोग जितना काम कर रहे हैं, जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, 6 आने के बाद भी उतना है, तो इसको लेके क्या फायदा है? कोई फायदा। एक्चुअली इसको तो वेजेस देने पड़ेंगे, खर्चा है बट बेनिफिट कुछ नहीं है। ये बेनिफिट है, इफिशियंसी इज अ बेनिफिट, बेनिफिट 0 है, बट वो क्या थोड़ी फ्री में काम करेगा, उसको पैसा तो देना पड़ेगा। आप मतलब आप यहाँ पे आप पागल हो, आप उसको हायर करके आपने गलती की, उसकी इफिशियंसी नहीं है, निकाल दो इसको, या उसको पेमेंट मत करो, कुछ भी करो। ठीक है, आगे रख के भी कोई फायदा नहीं, अननेसेसरी क्यों गर्दी करने की। नेक्स्ट, फिर भी आपको आप पागल ही हो, प्रोड्यूसर इज इरेशनल, ऐसे पकड़ के चलो। वो और 7th बंदे को काम पे लगाता है, हिज आउटपुट एक्चुअली अब डिक्रीज हो गया 90 से 85, चेंज इन द आउटपुट इज नेगेटिव, 90 हैज रिड्यूस्ड टू 85, चेंज इन द इनपुट 6 से 7 हुआ है, 1 -5, 7 तो नालायक निकला, 6 तो है ही है। देखो 6 तो नालायक है, वो आया है बैठा है, उसने कुछ प्रोड्यूस नहीं किया। 7 तो महानालायक निकला, उसने
एक्चुअली आपका आउटपुट कम किया, ऐसे क्यों हुआ होगा? आपका मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, जल्दी समझ में आएगा ऐसे होता क्यों है। एग्जांपल, आपको स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट दिया है, ग्रुप वर्क दिया है, एक प्रोजेक्ट करना है। जनरली ग्रुप में 3-4 लोग रहेंगे तो काम बहुत अच्छे से होगा। क्यों? बिकॉज 3-4 लोग आप उनको उन पे कंट्रोल भी रख सकते हो, हर कोई अपना अपना काम डिवाइड करेगा। समझ में आ रहा है? बट अगर यही 10 लोगों का ग्रुप है तो काम इतना अच्छा नहीं होगा। इन 10 में से 4-5 लोग खाली आपके ग्रुप के पार्ट रहेंगे, वो ना ही काम करेंगे ना ही दूसरों को करने देंगे, ऐसे होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर कोई वर्क है उसके लिए 4 या 5 लोगों की जरूरत है, 3-4 लोगों की जरूरत है, अगर उसके लिए आपने 10-12 लोग डाल दिए तो काम बिगड़ जाएगा, क्योंकि एवरीवन विल ट्राई टू डू द वर्क। बिकॉज यहाँ पे इवन 6 बंदे को भी काम करना है, उसको भी पैसे चाहिए, वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी इन जॉब। 7 को भी काम चाहिए, तो अब ये एक दूसरे को नीचे पुल करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? वो क्या बोलेंगे, अरे यार मुझे तो चांस नहीं मिल रहा है, तो दूसरे को नीचे खींचने का ट्राई करेंगे। उसकी वजह से बाकी लोगों की भी इफिशियंसी बिगड़ जाएगी, बाकी लोगों की भी इफिशियंसी बिगड़ जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये होता है when you employ more than the required number of laborers. Mumbai Indians is one of the best example or used to be best example. उनके केस में इतने सारे कोचेस थे, सचिन तेंदुलकर मेंटोर, उसके नीचे बॉलिंग कोच अलग, फील्डिंग कोच अलग, उसमें एक बैटिंग कोच अलग और एक हेड कोच अलग। सचिन तो है, फिर हेड कोच, फिर अलग अलग कोचेस। समझ में आ रहा है? तो ये सब लोग अगर इनको ट्रेन करेंगे तो इतने कोचेस की जरूरत नहीं। इफ यू चेक द चेन्नई सुपर किंग्स, खाली फ्लेमिंग कोच है, बिकॉज दे डोंट रिक्वायर। फ्लेमिंग बोलता है मुझे काम भी नहीं अगर धोनी काम करता है तो। ही इज अ मेंटोर, ही इज अ कोच, ही इज अ कैप्टन, ही इज अ प्लेयर, एवरीथिंग। वही मुंबई इंडियंस के केस में देखोगे, देयर आर सो मेनी कोचेस, पहले होते थे, उन्होंने बहुत रिड्यूस किया, इतने लोग हैं तो इनसे काम की उतना इफेक्टिव हो ही नहीं रहा था। इनिशियल देखो 3-4 आईपीएल उनके, राइट, यू विल फाइंड मुंबई इंडियंस इतनी स्ट्रांग नहीं थी, धीरे धीरे स्ट्रांग बनी वो, बिकॉज दे वर्कड ऑन इट। सो एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरी वो एप्लीकेबल है, बस एक फनी वे से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। इतने लोग काम पे, जो बैटिंग, एक बैटिंग कोच बैटिंग कर रहा है, सिखा रहा है, तब फील्डिंग वाला बोलता है नहीं नहीं तू आ जा, मैं तुझे फील्डिंग सिखाता। फील्डिंग वाला फील्डिंग सिखा रहा है, तब तक दूसरा कोई कोच लेके जाएगा, मैं तुझे दूसरा कुछ सिखाता। प्लेयर्स को डायरेक्शन बहुत लोगों से मिलेंगे, उससे क्या हो जाएगा कि वो उनमें जो कंटिन्यूटी वो डिक्रीज हो जाएगी, इफिशिएंसी कम हो जाएगी। एंड देयरफॉर समटाइम्स हैविंग लेस पीपल इज आल्सो गुड। सो आई सिंपली मीन व्हाट इज एन ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन इज वेरी सिंपल। टोटल प्रोडक्ट देखो, अब मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे ढूंढना ये तो समझ में आ गया, मैं ये निकालता हूं, ध्यान देना। हाउ टोटल प्रोडक्ट फंक्शन? टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज हुआ अप टू 90, देन 90 पे कांस्टेंट हुआ एंड देन डिक्रीज हुआ। सो कैन आई से एज आई employed more and more of labor, my total product initially increased, became maximum and then decrease। जैसे जैसे मैंने लेबर्स इंक्रीज किए, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम होगा एंड डिक्रीज हो गया। ठीक है? हाउ एवरेज प्रोडक्ट बिहेव्ड? जैसे जैसे मैंने नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज किए, एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ एंड बाद में डिक्रीज हुआ। 10 से 15, 15 से 20 इंक्रीज, फिर 20 का 20 रहा कांस्टेंट, मैक्सिमम होके कांस्टेंट, फिर 18, 15, 12, एवरेज डिक्रीज होता गया। ठीक है? यूज ऐसे इन्वर्टेड यू शेप। एंड व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट? जैसे जैसे मैंने लेबर्स इंक्रीज किए, वेरिएबल प्रोडक्ट, वेरिएबल इनपुट्स इंक्रीज किए, 10 से 20 हो गया, 20 से 30 हो गया, 30 से 20, राइट? सो यू कैन सी इंक्रीज हो गया इनिशियली and later on it decreased, then it becomes 0, then it becomes negative. Total product will decrease but will never become 0. Average product will decrease but will never become 0. Marginal product will be positive, will be 0, will be negative. But जो
आप मुझे बोलो, आपको 6 लेबर की इफिशियंसी 0 है, तो आपने 6 लेबर पे ही रुकना चाहिए ना। आपने 7 को क्यों लेना? आपको समझ में आना चाहिए यार, 6 वाले को वेजेस दे रहे हो, खर्चा कर रहे हो, वो कुछ आउटपुट नहीं कर रहा है, तो उसकी जरूरत ही नहीं है 6 की, उसको ही निकालो। वो छोड़ के आप 7 को ले रहे हो, उसको तो है 7 मीन्स, यहाँ पे यू आर नॉनसेंस। ये जो 6 एंड 7 स्टेजेस है ना, या 7 स्टेज इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक नॉनसेंस स्टेज। मतलब प्रोड्यूसर इरेशनल बिहेव कर रहा है यहाँ पे। नो वन विल हायर द 7th लेबर इन दिस शेड्यूल। A common man will never, या एक layman will not hire the 7th labor। पैसे तो देने हैं, बट वो बाकी लोगों का काम चौपट कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो दैट इज द थिंग। आगे क्लियर है यहां तक? सो यही मैंने लिखा है, यहां पे देखो टोटल प्रोडक्ट के कॉलम के नीचे, when number of units of variable inputs labors are increased, initially total product increases at a increasing rate। why increasing rate? because जब तक खुद देखो ना, रेट क्या है, पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 20 से इंक्रीज हुआ, फिर 30 से इंक्रीज हुआ, पहले 10 से इंक्रीज हुआ, फिर 20 से इंक्रीज हुआ, फिर 30 से इंक्रीज हुआ। इसलिए मैं बोलता हूं कि टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज होता है। क्या बोला मैंने? टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीज होता है। एट व्हाट रेट? इंक्रीजिंग रेट। देयर आफ्टर इट इंक्रीजेस 20, 10। सो बाद में वो इंक्रीज होता है, बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। इसलिए देखो, total product increases at an increasing rate, then increases at a diminishing rate, then it reaches its highest point and remains constant। 90 पे आके वो constant हुआ, ठीक है? And the last it will decrease। क्लियर है जो लिख के दिया वो? आगे AP देखो, AP initially increase becomes maximum and constant, decrease, वही लिखा है। AP initially increases, क्यों इंक्रीज होता है उसके पीछे रीजन समझना। why AP increases? because additional labor contributes more than the average। additional labor contributes more than the average। additional paper, new paper और extra paper contributes more than the average marks, तो आपका average increase होगा। so why AP increases? because your MP increases more than the AP, then it becomes maximum, राइट, देन इट डिक्रीजेस। ये डिक्रीज क्यों होगा? बिकॉज खुद एडिशन डिक्रीज हो रही है, मार्जिनल डिक्रीज हो रहा है। मार्जिनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट ड्राइव्स ऑल अदर थिंग्स, ठीक है? देन हाउ? सो इंक्रीज, मैक्सिमम, डिक्रीज, इंक्रीज, मैक्सिमम एंड डिक्रीज। आगे यस, यहां पे देखो, ठीक है? हाउ मार्जिनल प्रोडक्ट बिहेव? इंक्रीज यस, increase yes, decrease नेगेटिव। इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ, उसका मैक्सिमम 30 है, फिर डिक्रीज 0 नेगेटिव। इसलिए कर्व ऐसे, इनिशियली इंक्रीज हुआ, मैक्सिमम हुआ, डिक्रीज हुआ एंड 0 के नेगेटिव हो गया, ठीक है? आगे नाउ लिख लेना रिलेशन बिटवीन AP, MP, TP and AP। MP, AP and TP, ठीक है? when more laborers are employed, इनपुट अगर इंक्रीज करोगे, वेरिएबल इनपुट इंक्रीज करोगे, देन ठीक है? when MP is increasing, when MP is increasing,
मतलब इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है, इफिशियंसी एडिशनल लेबर की इफिशियंसी इंक्रीज हो रही है। टीपी एंड एपी, टीपी also increases at increasing rate. I am repeating these things many times because this is the crux, ठीक है? And how your AP, हाँ कब तक है? ओ ओके, या उसके पहले on first labor, on first labor AP is okay, TP is equal to AP is equal to MP, ये TP AP is equal to MP। फर्स्ट लेबर जब आपने काम पे लगाया, जब आपने फर्स्ट लेबर काम पे लगाया, देखो तो TP is 10, AP is 10, MP is also 10। फर्स्ट लेबर पे एवरीथिंग इज सेम, देयर आफ्टर ठीक है। व्हेन यू इंक्रीज MP, जब तक इंक्रीज होगा, कब तक MP इंक्रीज हो रहा है? यहां तक MP इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन? यहां तक MP इंक्रीज हो रहा है, ध्यान देना। TP increases at a increasing rate, right? AP also increases, so लिखो TP also increase at increasing rate and AP also increases, बट AP के लिए हम इंक्रीजिंग रेट डिक्रीजिंग रेट ऐसे कुछ नहीं बोलते। थर्ड, व्हेन MP इज मैक्सिमम, व्हेन MP इज मैक्सिमम, यही पॉइंट आप चाहे तो इसको यहां पे भी लेके जा सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? आपके देखने का तरीका है, आप कैसे उसको देखते हो। मैक्सिमम मतलब वहां तक गया है ना, वो इंक्रीज ही हुआ है ना, मैक्सिमम हुआ है मतलब वहां पे जाके वो रुका है। जब वो मैक्सिमम हुआ, ये वाला पार्ट, ठीक है, जब ये मैक्सिमम हुआ, राइट, जब वो मैक्सिमम हुआ मतलब मैक्सिमम होने तक, मैक्सिमम होने तक, मैक्सिमम होने तक क्या हो रहा है, राइट? व्हेन MP is increasing and till it become maximum, till it becomes maximum, till it becomes maximum, तब तक क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रही है, MP इंक्रीज हो रहा है, और मैक्सिमम होने तक TP इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, AP also increases, ठीक है? थर्ड, जब AP मैक्सिमम होगा अब डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, MP इज डिक्रीजिंग, आप फिर भी ज्यादा लेबर लगा रहे हो, आप फिर भी लेबर ज्यादा लगा, तो ये वाला सिचुएशन, MP डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो TP विल इंक्रीज बट एट ए डिमिनिशिंग रेट, TP विल इंक्रीज एट ए डिमिनिशिंग रेट, फिर 20, फिर 10, लाइक दैट। TP इंक्रीजेस, भले ही MP डिक्रीज होने दो, भले ही MP डिक्रीज होने दो, TP इंक्रीज होगा एट ए डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, अब देखो, अच्छा यस, अच्छा ये समझ में आ गया, इसका क्या हुआ रे? ये डिक्रीज हो गया, जब खुद AP MP डिक्रीज होगा तो AP भी डिक्रीज होगा। फोर, when MP is zero, when MP is zero, ये वाला पॉइंट,
तो जब एमपी 0 होगा टीपी मैक्सिमम होगा. टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, is maximum and constant. AP continues to decrease. And fifth, जब MP is negative, when MP is negative, TP starts to decrease. AP continues to decrease. ये लिख लेना और मैं फिर एक बार समझाता हूं, ध्यान देना. This is the base of my law. This is base of my law. जो हम लॉ सीखने वाले वो लॉ, ठीक है. अब ध्यान देना, सबसे पहले ये लिख लिया. अब मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान देना. अब मैं एक बार फिर से ठीक से लिखता हूं, एक एक लिखता हूं. रिलेशन बिटवीन एमपी एंड टीपी. और इस पर बहुत सारे एमसीक्यूज हैं. ईपी इतना, एमपी इतना होगा तो टीपी क्या रहेगा, वगैरह वगैरह वगैरह. एंड टीपी एंड स्लोप ऑफ द टीपी इज एमपी. स्लोप ऑफ एनी टोटल इज इट्स मार्जिनल. ठीक है. टोटलिटी का स्लोप मार्जिनलिटी. टोटल प्रोडक्ट का स्लोप मार्जिनल प्रोडक्ट. टोटल रेवेन्यू का स्लोप मार्जिनल रेवेन्यू. टोटल कॉस्ट का स्लोप मार्जिनल कॉस्ट. एनी टोटल का स्लोप इज मार्जिनल. ठीक है. जब मार्जिनल इंक्रीज हो रहा है, टोटल इंक्रीजेस एट ए इंक्रीजिंग रेट. देन मार्जिनल डिक्रीज हुआ, टोटल स्टिल कंटिन्यूज टू इंक्रीज, राइट, कंटिन्यूज टू इंक्रीज, बट एट डिक्रीजिंग रेट. टीपी जब तक एमपी 0 नहीं होती ना, तब तक इंक्रीज ही होते रहते हैं. टीपी जब तक एमपी खुद 0 नहीं होता तब तक इंक्रीज होती रहेगी. इनिशियली एट इंक्रीजिंग रेट, अगर टीपी इंक्रीज होता है, अदरवाइज डिक्रीजिंग रेट. एमपी जब 0 हो गया, टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. कांस्टेंट वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम एंड कांस्टेंट. जब एमपी निगेटिव होता है, टीपी स्टार्ट्स टू डिक्रीज. इफ यू रिमेंबर, टीयू एंड एमयू में यही रिलेशन था, खाली टीयू यहां से था. टीयू एंड एमयू में, बिकॉज टीयू नेवर, एमयू नेवर इंक्रीजेस. एमयू पहले से डिक्रीज होती है, बट एमपी पहले इंक्रीज होती है और बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट करती है. इनिशियली एमपी इंक्रीज होती है, मैक्सिमम होके डिक्रीज होती है. एमयू पहले यूनिट से डिक्रीज होना स्टार्ट होती है. ठीक है. ये जो यहां पे मैंने दिखाया, ये सेम रिलेशन आपके एमयू एंड टीयू के लिए भी था. ठीक है. आगे नेक्स्ट. ठीक है. देन ऑन सिमिलर बेसिस रिलेशन बिटवीन MP and AP. When MP was increasing, देखो, when MP was increasing, चलो आओ यहाँ पे, अब थोड़ा वैल्यूज पे गौर करो. अब खाली ट्रेंड मत देखो, थोड़ा वैल्यूज पे भी ध्यान देना. यहां तक 10 से 20 होगा, 20 से 30 हो गया, यूर MP. On first unit everything is same. On first unit everything is same. AP, TP, MP सब सेम है. But later on, जब ये इंक्रीज हो रहा है 20, 30, this is 15 and 20. So क्या हुआ, ध्यान देना. मैं यहां पे लिखता हूं, when MP is increasing, AP also increases, but is less than MP.
इज लेस देन एमपी, देखो ना, फर्स्ट यूनिट फर्स्ट लेबर पे एवरीथिंग इज सेम, फर्स्ट लेबर पे एवरीथिंग इज सेम, सेकंड पे देखो ये 15 है, ये 20 है, सो कैन आई से एपी इज लेस देन एमपी? यस। यहां पे देखो थर्ड लेबर पे एवरेज 20 है, एमपी 30 है, सो एपी इज लेस देन एमपी? यस, बराबर। अगर मैं बोलता हूं मार्जिनल इज मोर देन एपी, तो कौन सी कर ऊपर रहेगी? जो ज्यादा होगी वो ऊपर रहेगी, दैट इज एमपी कर्व will lie above AP कर्व, जो हायर होगा वो ऊपर रहेगा, ठीक है। देन when 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 AP is maximum, AP maximum 20 पे है, when AP is maximum it is equal to MP, ये दिख रहा है आपको? यस, सो लिख लेना। नेक्स्ट, when MP starts to decrease, when MP starts to decrease, देखो कैसे डिक्रीज हुआ, 30 से 20 हुआ, 20 से 10 हुआ, 10 से 0 हुआ, 0 से -5 हुआ, you can observe your AP is decreasing, तो ये लिख लेना पहले, when MP is decreasing AP also decreases, right? ठीक है, MP is equal to, इसका मतलब राइट, MP is equal to AP when AP is maximum। मे बी फिगर्स में आपको थोड़ा कंफ्यूजन लगेगा, डोंट वरी, मैं पहले रिलेशन लिख के दे रहा हूं, लिख लेना ये, ठीक है। नहीं भी समझ में आता है ये तो कोई टेंशन नहीं, डायग्राम विल टीच यू एवरीथिंग, डोंट वरी एट ऑल। अब मैं डायग्राम निकालूंगा एंड आई विल टेल यू ऑल रिलेशंस, एक बार रिवाइज हो जाएगा, ध्यान देना। ये मैंने लिख के दिया आपको रिलेशंस, ठीक है। नाउ इफ आई प्लॉट, अगर मैं इनको प्लॉट करता हूं तो कैसे आएगा? एग्जैक्ट एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं है, बट डायग्राम में निकाल रहा हूं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ वर्कर्स और लेबर, ठीक है। टीपी टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज, ठीक है। जब जीरो लेबर रहेंगे तो सब जीरो रहेंगे, जीरो लेबर पे एवरीथिंग इज जीरो, इसलिए यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। लेट मी ट्राई इट फर्स्ट। ये कौन सी कर रहेगी? जो इंक्रीज होके मैक्सिमम होके डिक्रीज होके निगेटिव हो गई, दिस इज एमपी। This will be another point. Whenever I draw the diagram, मैं पहले एमपी निकालता हूं, बिकॉज एमपी विल डिसाइड एवरीथिंग, इसलिए मैंने एमपी निकाला, ठीक है। सो दिस इज जीरो लेबर, दिस इज माई 6 लेबर ना, हाँ 6 लेबर पे मेरा आउटपुट जीरो था, 6 लेबर पे मेरा एमपी जीरो था, 6 लेबर पे, तो दिस इज 6 लेबर, 6th वर्कर, ठीक है। आगे तो 6th वर्कर तक आपका एमपी इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ वगैरह, ये मैक्सिमम कौन से लेबर पे था? ये मैक्सिमम कौन से लेबर पे था? एमपी मैक्सिमम कौन से लेबर पे था? 20, 10, 20, 30 थर्ड लेबर पे था, थर्ड लेबर पे, ये थर्ड लेबर है आपका, ठीक है।
मैं बोला मैंने एग्जैक्ट एक्सिस नहीं निकाले, मैं रैंडम मतलब आगे पीछे हो सकती है थोड़ा डायग्राम। ये आगे आपकी दूसरी कर्व विच इज टोटल प्रोडक्ट कर्व। एज लॉन्ग एज यहां पे स्लोप चेंज हुआ है, देखो यहां पे इनिशियली ये इंक्रीज हुई इस पॉइंट तक, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट आई, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट ध्यान देना। जब तक खुद एमपी इंक्रीज हो रहा है अप टू थर्ड लेबर, अप टू थर्ड लेबर, जब तक खुद एमपी इंक्रीज हो रहा है, टीपी इंक्रीज होता है एट ए इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। एंड देयर आफ्टर थर्ड लेबर के बाद एमपी डिक्रीज होना लगता है, एमपी डिक्रीज होने लगता है इस पॉइंट थर्ड लेबर से 6, जीरो से थर्ड लेबर तक, जीरो से थर्ड लेबर तक एमपी इंक्रीज हो रहा है, इसलिए टीपी इंक्रीजेस इंक्रीजिंग रेट। फोर्थ लेबर, फिफ्थ लेबर, सिक्स लेबर तक माई एमपी डिक्रीज हो रहा है, एमपी पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे फोर्थ रहेगा, फिफ्थ रहेगा, वहां पे मेरा एमपी पॉजिटिव है, my TP will increase because contribution positive है, total will increase but not at a increasing rate but at a decreasing rate। इसलिए मैंने स्लोप चेंज किया, देखो मैंने पहले एकदम स्टीपर निकाला और फिर मैंने उसको थोड़ा फ्लैट कर दिया और धीरे 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 फ्लैट होके वो कांस्टेंट हो गया, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, 6 लेबर पे वो कांस्टेंट हो गया, ठीक है। सो ये वाला पोर्शन है जहां पे मैं बोलूंगा टीपी इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, देन when my MP at a sixth labor is 0, TP is maximum and constant। अब ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। At third labor my MP was maximum, and till that point the slope of TP was steeper, slope of TP was steeper, increase and decrease, right? Thereafter fourth labor, fifth labor, sixth labor, MP started decreasing, slope became somewhat flatter, flatter होते जा रहा है। This point जहां पे द रेट चेंजेस, इंक्रीजिंग का रेट चेंज हो रहा है, पहले इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, टीपी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट, देयर आफ्टर इंक्रीज डिक्रीजिंग रेट, जहां पे इंक्रीज का रेट चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। Point of inflection. So point of inflection is the point at which total utility curve, total product curve का slope change होता है। क्या बोला मैंने, ध्यान देना। Point of inflection is the point at which the slope of TP changes। वो slope पहले increasing at increasing rate होता है, बाद में increasing at decreasing rate होता है। So it is a corresponding point, right? वो कौन सा corresponding point होता है MP पे? Highest point, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी, उसका अगर करस्पॉन्डिंग पॉइंट टीपी पे लेके जाते हो, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एमपी उसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर टीपी पे लेके जाते हो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। उसके बाद एट सिक्स लेबर टीपी इज 0, एट सिक्स लेबर में टीपी इज 0, सॉरी एट सिक्स लेबर एमपी इज 0 एंड टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। अब ध्यान देना, ठीक है, ये दो कर्व समझ में आ गए, वही लिखा है हमने, देखो यहाँ पे टीपी इंक्रीजेस इनिशियली, एमपी इंक्रीज इनिशियली, टीपी इंक्रीज इंक्रीजिंग रेट, बाद में एमपी स्टार्ट्स टू डिक्रीज, मैक्सिमम होके स्टार्ट्स टू डिक्रीज, टीपी कंटिन्यूज टू इंक्रीज बट एट डिक्रीजिंग रेट।
जब एमपी खुद जीरो है, टीपी मैक्सिमम एंड कांस्टेंट है, एंड जब एमपी निगेटिव हो जाता है, टीपी डिक्रीज होना स्टार्ट होता है। अब हम एक और कर्व लेके आएंगे एमपी वाली। दिस इज एपी। अब ध्यान देना मैं क्या कर रहा हूं। एज लॉन्ग एज, मैंने पहले ही बोला, जब तक नया बैट्समैन एवरेज से ज्यादा रन बनाएगा, नया बैट्समैन पहले का जो एवरेज था उससे ज्यादा रन बनाएगा, आपका एवरेज इंक्रीज होते जाएगा। या नेक्स्ट पेपर पहले के पेपर से ज्यादा मार्क्स खींचेगा तो एवरेज इंक्रीज होता जाएगा। मतलब एडिशन जब तक ज्यादा है एवरेज से, यहां तक देखो, ये वाले आउट लेबर तक, आई डोंट नो ये कौन सा लेबर है, ये कौन सा लेबर है आई डोंट नो, मुझे चेक करना होगा जहां पे दोनों इक्वल है। एमपीएन, ओके सॉरी मैंने गलत जगह पे ये किया है, ये वाला देखना पड़ेगा मुझे कौन सा है। ठीक है, कौन से लेबर पे एपी एंड एमपी आर सेम, एपी एंड एमपी फोर्थ लेबर पे, सो दिस इज फोर्थ लेबर, फोर्थ लेबर। ठीक है, देखते हैं। सो क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना। अप टू फोर्थ लेबर, अप टू फोर्थ लेबर एमपी is increasing, becomes maximum and then decreases, and fourth labor पे it becomes equal to your AP। जब तक वो AP से ज्यादा है, जब तक वो AP से ज्यादा है, MP AP से ज्यादा है, एडिशन एवरेज से ज्यादा है, एडिशन एवरेज से ज्यादा है, एवरेज खुद इंक्रीज होता रहेगा, एवरेज खुद इंक्रीज होता रहेगा। एंड जब एडिशन एवरेज से कम होगा, एडिशन एवरेज से कम रहेगा, नेक्स्ट पेपर एवरेज से कम मार्क्स ले रहा है तो एवरेज नीचे आएगा, एवरेज डिक्रीज। सो एज लॉन्ग एज, अब यहां पे देखो मैं आपको क्वेश्चंस क्या पूछते हैं। व्हेन एमपी इज जीरो, व्हेन एमपी इज जीरो टीपी इज मैक्सिमम, व्हेन एपी इज मैक्सिमम, एपी खुद मैक्सिमम है, एपी खुद मैक्सिमम है, इट इज इक्वल टू एमपी। देखो ना, जब एपी खुद मैक्सिमम है तब उसको ऊपर से किसने कट किया है, एमपी ने। एमपी कट, एमपी कर्व कट्स एपी एट इट्स मैक्सिमम फ्रॉम द अबोव, एपी कर्व कट्स एमपी कर्व फ्रॉम अबोव एट द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ एपी। एपी के मैक्सिमम पॉइंट पे कौन सी कर्व कट करती है, एमपी कर्व कट करती है, ऊपर से या नीचे से, ऊपर से। This is the second question. First question, when MP is zero, TP is maximum. Second question, when AP is maximum, dash dash cut curves, right? AP from dash dash side. MP curve cuts the AP from the above. ठीक है? Then सबसे पहले हाईएस्ट कौन होता है? सबसे पहले हाईएस्ट देखो, MP कौन से लेबर पे हाईएस्ट हुआ है? थर्ड जब बंदा काम पे आया तभी एमपी हाईएस्ट हो गया। उसके बाद कौन हाईएस्ट हुआ, खुद का हाईएस्ट बोल रहा हूं, उसके बाद एपी फोर्थ लेबर पे हाईएस्ट हुआ, एंड सबसे एंड में हाईएस्ट कौन हुआ, टीपी, टीपी सिक्स्थ लेबर पे हाईएस्ट हुआ, टीपी सिक्स्थ लेबर पे। तो which curve attains its maximum first, MP achieves its maximum first, then AP achieves its maximum first, and then TP achieves its maximum first। अगर मैक्सिमम जो पहले है वो पहले डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, इसलिए which curve starts to fall early, सबसे पहले MP फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज जो सबसे पहले मैक्सिमम होगी वो सबसे पहले डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, उसके बाद यूर AP उसके बाद हाईएस्ट होगी और उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, सबसे एंड में हाईएस्ट होगा टीपी एंड सबसे एंड में डिक्रीज होना स्टार्ट होगा टीपी। ठीक है, these are right। so as long as AP is increasing, ऐसे भी पूछा जाता है, as long as AP is increasing, फोर्थ लेबर तक देखो AP increasing है, TP is more, MP is above the
AP as long as इस point तक as long as AP is increasing, TP is above, sorry, MP is above. TP तो सबसे ऊपर ही रहेगी, उसमें कोई डाउट ही नहीं है. MP is above AP. जब AP मैक्सिमम होती है, दोनों इक्वल होते हैं, AP एंड TP इंटरसेक्ट. एंड जब AP डिक्रीज होती है, जब AP डिक्रीज होती है, MP इज बिलो, MP बिलो रहेगी AP के. जब AP इंक्रीज होती है, AP इंक्रीज होती है, MP उसके ऊपर रहेगी. जब AP मैक्सिमम रहेगी, MP उसको कट करेगी. एंड जब AP डिक्रीज होगी, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज होगा, MP उसके नीचे रहेगी. क्लियर है? These are the relation. ये डायग्राम निकाल के लेना. This is one of the most important diagram of our syllabus. और मैं आपको सर बोलोगे सर हर डायग्राम को बोलते हैं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. इको में ऑप्शन स्टडी नहीं चलेगा, डेफिनेटली नहीं चलेगा. ड्रॉ द डायग्राम. और इस डायग्राम पे प्रैक्टिस करो, अच्छी प्रैक्टिस करो. ठीक है? करो जल्दी. करो जल्दी. सो अगर उस शेड्यूल को हम ठीक से प्लॉट करते ग्राफ लेके, तो आपको ऐसी डायग्राम मिलेगी. ठीक है? सो यहाँ कहाँ पे आपका फर्स्ट लेबर रहेगा, यहाँ कहाँ पे सेकंड लेबर रहेगा. एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ लेबर्स, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स. ठीक है? सो रिलेशन. ठीक है? अब ध्यान देना, ये डायग्राम मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बट डायग्राम आपके आंख के सामने होनी चाहिए. दिस इज एमपी. तो यहाँ कहाँ पे आपका मैक्सिमम होना चाहिए टीपी. ये जो मैक्सिमम है, यहाँ से उसका स्लोप चेंज होना चाहिए. थोड़ा फ्लैटर करते चलो इसको, फ्लैट करके डिक्रीज मारो इसको. ठीक है? दिस शुड बी योर एपी. तो फर्स्ट रिलेशन बिटवीन, ध्यान देना, रिलेशन बिटवीन, ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछते हैं. Relation between AP and MP. When AP is increasing, MP is above. MP is above the AP. When AP is maximum, MP intersects AP from above. When AP is decreasing,
MP lies below AP. MP lies below AP. This is a relation. क्या? When AP is increasing, MP lies above MP. When AP average product, ऐसे confuse होता है. When average product is increasing, marginal product is more than average product and lies above the average product. When AP is maximum, marginal product will be equal to AP will intersect from the above. When average product is decreasing, marginal product is less than average product and will lie below. This is the relation between AP and MP. The relation between TP and MP. When as long as marginal product is increasing, total product increases at an increasing rate, थोड़ी steeper रहेगी. When marginal product starts to decrease, but it is positive, TP continues to increase, say continues to increase, but at a diminishing rate. When MP is marginal product is 0, total product is a maximum. And when marginal product becomes negative, total product decreases. The point, the corresponding point, the highest point, right? The corresponding point on TP, right? जहां पे MP हाईएस्ट है उसका corresponding point on TP, जहां पे उसका slope change हो जाएगा, right? That is called as point of inflation, I. Clear है? And TP and MP will never become 0. They may reduce, but they will never become 0. MP is positive, is 0 as well as negative. So this is my relation. और ये अगर रिलेशन समझ में आया है, और ये क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस. ये जो शेड्यूल है हमने उसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट किया, नथिंग एल्स. इफ इट इज क्लियर, आगे नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं. अब ठीक है, यस और नो. तो मैंने डायग्राम भी कवर की, डायग्राम भी कवर की. नाउ we have to study the production function. लिख लेना production function. Production function is any function gives a relation between the two variables. Demand function gives relation between the quantity demanded and the determinants of demand. Supply function gives the relation between the quantity supplied and determinants of supply. Try to understand. So, and among those two variables, one is an independent variable, one is independent variable, and another is a dependent variable. Independent variable का दूसरा नाम explanatory variable होता है. Explanatory variable. Independent variable is the variable which will decide the dependent variable. Like in case of demand function, ठीक है, yes, they will never become 0. AP and TP will never become 0. ठीक है, वो प्रोड्यूसर को समझेगा ना, डिक्रीज हो रहा है तो बंद करो. ठीक है, वो 0 नहीं होने देगा. डिक्रीज होने पे उसकी बत्ती जलेगी, यार कुछ तो गलत हो गया. टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज हो गया तो टेंशन में आएगा, क्यों डिक्रीज हो गया. वो आगे तक नहीं करेगा, उधर ही रुकेगा. ठीक है, आगे देन क्या बोल रहा हूं, ध्यान देना. Any function tells the relation between the two variables. One is dependent, another is independent. Independent variables are also called as explanatory variable. So like in case of demand function, determinants of demand are independent. They decide the quantity demanded. Quantity demanded was independent variable. In case of supply function, determinants of supply were independent and they decided the quantity supplied. ठीक है. On similar basis, production function is a technical relation. Which relation? Technical or physical? Technical or physical relation.
physical relationship between inputs and output. Inputs are factors of production. Output is a quantity of goods and services produced. So, what do you mean by technical or physical relation? Means it is not in money terms. Money terms में नहीं है. That is not in money terms. Not in money terms. Money terms. अगर इसी रिलेशनशिप को मनी टर्म्स में लेके जाते हो तो कॉस्ट फंक्शन होता है. इसी रिलेशनशिप को अगर आप प्राइजेस से मल्टीप्लाई बाय करते हो, रिलेशन इज ए फंक्शन, अगर उसको प्राइजेस से मल्टीप्लाई बाय करोगे तो आपको कॉस्ट फंक्शन मिलेगा. सो फिलहाल इतना समझ लेना, इट इज नॉट मनी, नॉट इन मनी टर्म्स, इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, मॉनेटरी टर्म्स में नहीं है, ये टेक्निकल टर्म्स में है, ये फिजिकल टर्म्स में, मनी टर्म्स. So, अभी तक मैंने कुछ डिस्कस किया. मैंने बोले इतने लेबर लगाए, इतना आउटपुट हुआ. मैंने ये बोला कि लेबर का वेजेस इतना है. मैंने बोला कि आउटपुट का कॉस्ट इतना है. कुछ कॉस्ट बोला, कुछ नहीं बोला. रेवेन्यू बोला, कुछ नहीं बोला. मैंने एक रेवेन्यू का भी वर्ड यूज नहीं किया, नहीं कॉस्ट. मैं खाली टेक्निकल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं, नॉट इन मनी टर्म्स. देन आगे, दिस रिलेशन, राइट, इस रिलेशनशिप में इनपुट इज इंडिपेंडेंट एंड आउटपुट इज अ डिपेंडेंट. आउटपुट डिपेंड्स ऑन द इनपुट. लेबर पे आउटपुट डिपेंडेंट है. जब लेबर जीरो था तो आउटपुट भी जीरो था. सो आई कैन राइट लाइक दिस, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट्स, वेरियस इनपुट्स is a function of inputs. There are many inputs. It can be land, labor, capital, entrepreneurs. उसमें भी बहुत सारे हैं, आपको पता है. लैंड में लैंड, वाटर, नेचुरल रिसोर्सेस, कोल, एक्सेट्रा. लेबर में स्किल्ड लेबर, सेमी स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर, राइट. उसके बाद कैपिटल में बिल्डिंग, मशीनरी, रोबोट्स, कंप्यूटर्स, रॉ मटेरियल, कंज्यूमेबल्स, एंटरप्रेन्योर. ऐसे बहुत सारे इनपुट साथ में आके आउटपुट कर रहे हैं. सो दिस रिलेशन इज अबाउट इनपुट्स एंड आउटपुट. आउटपुट इज अ डिपेंडेंट ऑन इनपुट्स. सो डिपेंडेंट वेरिएबल इज आउटपुट एंड इनपुट्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इनपुट्स डिसाइड्स द आउटपुट. ठीक है. सो however some inputs may be fixed or some inputs may be variable. so हमने सब चार इनपुट्स, मतलब सब इनपुट्स को चार में डिवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. तब इन चार को फॉर द पर्पस हमें स्टडी करना है तो हमें उसको और सिंपल करना है. इस फंक्शन को और सिंपल करना है. इसलिए हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसे भी लिखते हैं, आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ output is a function of labor and capital. लिखना into bracket labor and capital. L stands for labor, and K stands for capital. So मैंने क्या बोला, there are millions of inputs that are used in the production function. उसमें से मैंने बोला मैं लेबर चेंज करने वाला हूं, बाकी मैं कांस्टेंट रहने वाला. तो बेसिकली इतने सारे इनपुट्स को हमने चार में डिवाइड किया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स. उसको भी मैंने दो में डिवाइड किया, लेबर को अलग और बाकी सब कैपिटल बोल दिया. लैंड को भी कैपिटल बोल दिया, कैपिटल तो कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर को भी कैपिटल बोल दिया. ऐसे पकड़ के चलो.
मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे किया है. इसमें से लेबर will be variable input, and capital will be fixed input. I cannot change capital in the short run. I cannot build a new factory in the short run. I cannot buy a new machinery in the short run. I cannot increase the scale. फिक्स फैक्टर चेंज करने की जब बात करते हैं तो हम स्केल की बात करें. स्केल, आई कैनॉट इंक्रीज द स्केल इन द शॉर्ट रन. व्हाट आई कैन डू इन द शॉर्ट रन, आई कैन चेंज द लेबर वेरिएबल इनपुट. ठीक है. सो दिस रिलेशन टॉक्स अबाउट, लिख लेना, मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड. इक्वेशन है तो आपको इक्वेशन में दो चीजें दूं. एक, आप अगर आपको इनपुट दिया होगा, मैंने बोला मेरे पास इतना इनपुट है, लेफ्ट हैंड साइड दी है तो आप राइट हैंड साइड ढूंढ सकते हो. अगर राइट हैंड साइड दी है तो लेफ्ट हैंड साइड ढूंढ सकते हो ऑन सिमिलर बेसिस. राइट. It talks about maximum output that can be produced with given quantity of input. Inputs. So ये बोलता है अगर मेरे पास, मैं बोलता हूं मेरे पास इतने 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 इनपुट्स है, तो मुझे बोलो कितना आउटपुट होगा, मैक्सिमम आउटपुट. सो इट विल गिव यू, अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है तो राइट हैंड साइड मिल जाएगी. सो विथ गिवन इनपुट्स मैक्सिमम कितना बनेगा, राइट. विथ गिवन इनपुट्स मैक्सिमम कितना, मेरे पास 100 लेबर्स है तो मैक्सिमम कितना बनेगा. मेरे पास 500 लेबर है, मैक्सिमम आउटपुट कितना बनेगा. मेरे पास 1000 लेबर्स है, मैक्सिमम आउटपुट कितना बनेगा. आई हैव गिवन यू इनपुट, तो आप मुझे बोलो कितना आउटपुट बनेगा विथ सम फिक्स फैक्टर्स को मैं वैसे भी नहीं चेंज कर सकता. मेरे पास इतने फिक्स फैक्टर्स हैं एंड मैं लेबर इतने देता हूं तो कितना आउटपुट बनेगा, इतना देता हूं लेबर तो कितना बनेगा, इतने लेबर देता हूं तो कितना आउटपुट बनेगा. Your production function gives the maximum output with given input. और उल्टा भी हो सकता है. और अगर मैंने टारगेट रखा है, आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनपुट डिसाइड करो आपके पास कितना इनपुट है और फिर डिसाइड करो आउटपुट कितना बनेगा मैक्सिमम. या कभी कभी उल्टा भी जाना पड़ता है कि हमें इतना आउटपुट चाहिए, इतना आउटपुट चाहिए, इतना मैक्सिमम, हमें ये आउटपुट चाहिए, इतना आउटपुट चाहिए. ये आउटपुट के लिए मुझे कितने इनपुट लगेंगे. अगर इनपुट दिया तो आउटपुट ढूंढ के दो, अगर आउटपुट दिया तो इनपुट ढूंढ के दो. तो लिखो, राइट, मिनिमम इनपुट्स रिक्वायर्ड, minimum inputs required. It also gives you minimum inputs required to produce given output. Given quantity of finished goods. So अगर इनपुट दिए तो उस इनपुट से मैक्सिमम कितना बनेगा वो. अगर आपके पास आउटपुट है तो उस आउटपुट के लिए कितने मिनिमम में मैं बनाऊंगा, कितने मिनिमम इनपुट चाहिए. ऑब्वियसली इनपुट्स, कम इनपुट में ज्यादा बनना चाहिए, कम इनपुट्स में ज्यादा बनना चाहिए. दैट, सो इफ यू हैव इनपुट्स, आपके पास इनपुट्स रेडी है, तो प्रोडक्शन फंक्शन टेल यू कि इस इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट कितना बनेगा. एंड अगर उल्टा आपने डिमांड फोरकास्ट किए एंड आपको लगता है कि आपकी डिमांड इतनी रहेगी, ये डिमांड सेटिस्फाई करने के लिए, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए, डिमांड कब सेटिस्फाई होगी, जब आप गुड्स प्रोड्यूस करोगे, तो वो प्रोड्यूस करने के लिए मिनिमम इनपुट कितने चाहिए. सो मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमम इनपुट के बारे में बात करता है. दिस इज अ रिलेशन, टेक्निकल और फिजिकल रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट. इट गिव्स यू मैक्सिमम आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन इनपुट, और right, minimum inputs required to produce max, right, to the given output. It talks about this thing, and this is a production function. We will be studying production function, लिख लेना, under 2 runs, जो हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे. Production function under 2 runs. First run, short run.
in short run, production function in long run. Production function in the short run is studied variable input is labor, all other factors are fixed. We assume लेबर विल ओनली चेंज. जैसे मैंने शेड्यूल निकाला था उसमें खाली मैंने लेबर चेंज किया था, खाली लेबर चेंज किया था, बाकी चीजें नहीं. सो शॉर्ट रन में हम एज्यूम करेंगे कि खाली लेबर चेंज कर सकते हैं. लेबर इज ओनली वेरिएबल, ऑल अदर्स आर फिक्स. शॉर्ट रन का फीचर एक कम से कम एक फिक्स होना चाहिए, कम से कम एक फिक्स्ड. तो हमने लेबर छोड़ के बाकी सबको फिक्स रखा. तो शॉर्ट रन में हम, बिकॉज देयर आर फिक्स फैक्टर्स, हम शॉर्ट रन में हम खाली लेबर चेंज करेंगे. कैपिटल विल रिमेन सेम. हमारे पास दो इनपुट सब, लेबर एंड कैपिटल, राइट. ऑल अदर फैक्टर्स दैट इज कैपिटल, that is capital. K that is capital is constant, are fixed. ये जो स्टडी करेंगे इसको बोला जाएगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. और दूसरा नाम है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स. और एक और नाम है लॉ ऑफ ऊपर लिखा था मैंने डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू वेरिएबल फैक्टर. इधर मैंने कल लिख के दिया था, इफ यू रिमेंबर, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स. लॉ ऑफ रिटर्न्स, लॉ वो डिमिनिशिंग रिटर्न्स ही होता है बट वर्ड डिमिनिशिंग नहीं यूज किया जाता. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू, रिटर्न्स मतलब आउटपुट, रिटर्न्स मतलब आउटपुट. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट. लेबर चेंज होगा तो आउटपुट कैसे चेंज होगा. ठीक है. एंड लॉन्ग रन में एवरीथिंग, ऑल फैक्टर्स, लेबर एंड कैपिटल, सब all factors are variable and therefore scale will be changed. स्केल ही चेंज हो जाएगी. एक फैक्ट्री नहीं, अब दो फैक्ट्री, तीन फैक्ट्री, एक मशीन नहीं, दूसरी मशीनरी, तीसरी मशीनरी, पूरा चेंज हो रहा है, स्केल चेंज हो रही है, विल बी चेंज्ड. तो इसमें जो प्रोडक्शन फंक्शन स्टडी करने वाले हैं, जब स्केल चेंज होगी तो आउटपुट कैसे चेंज होगा. इसमें हम क्या स्टडी करने वाले शॉर्ट रन में, लेबर चेंज होगा, लेबर चेंज होगा तो आउटपुट कैसे चेंज होगा. और इसमें स्टडी करने वाले सब कुछ चेंज होगा, स्केल ही चेंज होगी तो आउटपुट कैसे चेंज होगा. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल. ठीक है, ये हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. उसके डायग्राम, एक्चुअली ये जो लॉ ऑफ, ये जो फर्स्ट शॉर्ट रन का है ना, उसकी डायग्राम ये है. ये जो डायग्राम है ना, ये इसकी शॉर्ट रन की डायग्राम है. उसमें खाली लेबर चेंज हो रहा है, बाकी फिक्स्ड है. इसकी हम समझेंगे. ठीक है, पहले हम शॉर्ट रन का कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट रन पूरा कंप्लीट होगा. नेक्स्ट लेक्चर कल नहीं होगा क्योंकि परसों पेपर लिखना है आपको. इवन मैथ्स का भी शायद से पेपर है एंड अकाउंट्स का भी 100 मार्क्स का है. सो कल आई एम नॉट कीपिंग माई बोथ द लेक्चर्स, ना ही अकाउंट्स ना ही इकोनॉमिक्स. प्रिपेयर फॉर द टेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, राइट द टेस्ट ऑन संडे. फिर संडे इवनिंग आई विल बी टेकिंग द लेक्चर. ठीक है, संडे इवनिंग में शायद से इको का लेक्चर रख दूंगा, या संडे मॉर्निंग नहीं रखूंगा बिकॉज बच्चे पढ़ रहे होंगे, होपफुली पढ़ रहे होंगे. ठीक है, तो
ऐसे रहेगा। दूसरी बात,